The first chapter is demand. The second chapter is consumer behavior, which you're not doing today. We'll be starting with a chapter called elasticity of demand. But for that, we need one thing, which is the law of demand. उससे पहले, for people who were not there in the first 4 classes, a small revision of what we have done and what Aaron has missed. आप और मैं बात करेंगे सर. सबसे पहले आता है desire backed by purchasing power at a particular price for a particular period of time. Then we had types of demand, individual versus market. जल्दी आइए. फिर we had ex ante, ex post, complementary, composite, derived. Then we moved on to a law, which was the law of demand. And while writing the answer law of demand, we first state the law, give assumptions, give the tabular representation of the law of demand known as the demand schedule. Then we give a graphical representation of the law of demand known as demand curve. Both individual and market needs to be explained. Then we moved on to exception to the law of demand, articles of Snob appeal, Veblen effect, emergencies, future expectations, necessities, and the most important was Giffen goods. Giffen goods are those first quality products or most inferior products on which the consumer is spending majority of his income. When the price of such goods rise, the consumer does not have the option of reducing the demand as he is surviving on those products and he cannot substitute it to better quality products because उससे मतलब खराब और कोई product नहीं है और उसकी income उसको allow नहीं करती है दूसरे product पे जाने से. So that is what we had done with exceptions to the law of demand. Then we had moved on to a question that what are the factors affecting demand, and we divided them into primarily 2 parts, price and other factors. And if you've done your day 4, price leads to a movement along the demand curve divided into extension and contraction, whereas shift leads to a shift of the demand curve either rightward or leftward, increase or decrease. Lastly, we did a question, why is the demand curve downward sloping, which was income effect, that when the price of the commodity falls, the real income of the consumer, the purchasing power of the consumer rises, so therefore he wants to buy more of it. And there was a substitution effect. When the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper to its substitute, so therefore we want to buy more of it. And we had law of DMU as well. Ek second, I have to take this, huh? I'm so sorry. Hello? हाँ. Hello? 8:30 बोलो. तो मम्मी मेरे को ना एक काम करो, किसी के हाथ या एक मेरा बैग और मेरी बाइक की चाबी बस भिजवा दो. दैट्स द ओनली थिंग आई नीड. नहीं आई विल सेंड समवन. रुको. हाँ अच्छा ठीक. सो बोलिए. The law of demand. देना पड़ेगा. इंडिविजुअल है. हाँ वही एडिशन है, हॉरिजॉन्टल समेशन लिखवाए थे, अभी हम छोड़ दे रहे हैं, अभी हम नया चैप्टर पे चलते हैं. देन वी हैड डिस्कस लॉ ऑफ DMU. द लॉ ऑफ DMU स्टेटेड दैट व्हेन वी बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी वी वुड want a discount or a reduction in price because when we buy more additional satisfaction falls. So अगर तो आपने first 4 classes attend किए हैं, like a lot of students have been joining lately, तो ये वाला chapter आप तब भी समझ पाएंगे अगर आपने नहीं की है, as long as you understand the law of demand. What does the law of demand state? That price fall, quantity demanded will extend. गिरिक फ़ोन छोड़ना होगा. And when prices will rise, quantity demanded will fall. ये law of demand हम लोग सब जानते हैं. We have discussed this, we have talked about this as a law, and this law is only true when the certain other aspects are kept constant. Assuming that all other factors are constant and this law will apply, we are going to be talking about a new thing, which is called the elasticity of demand. Before I start the new chapter, please be very careful in assessing the law of demand. The law is not stating that the price is low, quantity will be demanded more. The price falls, है ना?
5 करोड़ की गाड़ी अगर 4 करोड़ की हो जाती है, वो एक्सेप्शन नहीं है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो भी वो महंगी गाड़ी कहलाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, क्योंकि प्राइस हाई लो से मतलब नहीं है, प्राइस फॉल से मतलब है। व्हेन द प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी रिस्पॉन्ड्स, व्हेन द प्राइस राइजेस, quantity responds in a negative manner. That is what the general law of demand is. What we are going to study today is a very interesting, very amazing thing which will help a lot of people who are future entrepreneurs or who are currently helping parents into their own businesses. Elasticity को समझने से पहले let us understand the word elastic. For example, Riya, is this pen elastic? What do you mean by that? नहीं. Why is it not elastic? Stretchable नहीं है. Absolutely correct. The reason that I am asking you this, that elasticity का मतलब होता है how well does it respond to force? Does it respond to force or it is brittle? Brittle मतलब समझते हैं, टूट जाएगा। अगर मैं ज़्यादा दम लगाऊंगा ना, it will break into two halves. There is no leeway, there is no pressure that I can apply, there is no response coming from them. But if I use a rubber band, when I apply force, it responds, it reacts. So basically a reaction is elasticity. How sensitive is your commodity to the changes in price? And it might come to your head that how will it help me in my business? It will drastically help you in your business if you can identify your product. But first, for one easy way to understand what elasticity is, we have to conduct an experiment here. मैं मारूंगा नहीं, पर इमेजिन करिए कि मैं एक एक करके 5 बच्चों को थप्पड़ मारूंगा। हाय ना में जवाब दीजिए, ये 5 बच्चों का रिएक्शन अलग अलग होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं गया पुष्पनील के पास और मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, घूसा मारा, लात मारी, पर पुष्पनील बोला कि हम जिम जाते हैं भैया, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ा। ही डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल। नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड, मैं गया देवांश के पास, मैंने बस देवांश को ऐसे हाथ लगाया, टच किया, देवांश पॉकेट से एसिड निकाला, मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला हाथ कैसे लगाए आप? हाँ ना में जवाब दीजिए मैम, 2 वेरी एक्सट्रीम रिएक्शंस, दोनों जस्टिफाइबल नहीं है। एक का रिएक्शन ही नहीं है और एक ऐसा इमेजरेबल रिएक्शन है जो आप माप ही नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड, मैं गया खुशबू को मारा, मैं गया खुशबू को 60 किलोमीटर आवर की स्पीड में थप्पड़ मारा, एग्जैक्ट कंपास वंपस लेके गया था, पूरा प्रोटेक्टर लेके एग्जैक्ट 60 किलोमीटर आवर की स्पीड में थप्पड़ मारा। खुशबू क्या की, एग्जैक्टली हमको 60 किलोमीटर के आवर की स्पीड में थप्पड़ मारी। बोले भैया होंगे घर में होंगे, हम किसी से मार नहीं खाएंगे। सो शी हिट्स मी, आई हिट हर 60 एंड शी हिट्स मी बैक एट 60। फिर मैं गया चिराग के पास, मैं गया चिराग को एक खींच के 60 किलोमीटर आवर की स्पीड में थप्पड़ मारा। चिराग उठा, बोला देखिए आप भैया हैं, इज्जत करते हैं, मारेंगे तो ज़रूर हम, पर 60 का स्पीड से कम। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आई विल हिट यू, बट नॉट एट द स्पीड एट यू हिट मी। फिर मैं गया वंश के पास, मैंने वंश को 60 किलोमीटर की स्पीड में थप्पड़ मारा, वंश ने मेरे को 120 की स्पीड में वापस मार दिया। भैया पॉइंट क्या है, एवरीबडी रिएक्ट्स डिफरेंटली टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो व्हेन प्राइसेस विल फॉल, क्वांटिटी डिमांड विल रिएक्ट, बढ़ेगा, पर क्या सब एक ही प्रपोर्शन में बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल रिया, वी आर लुकिंग एट योर डिमांड फॉर चॉकलेट्स एंड लेट्स से salt. When the prices of chocolates are 100, you buy about 50 chocolates in a year, price and quantity. And when the price of salt is, let's say, 100 rupees per kg, in your house about 10 kgs of salt is used. In both cases, price fell. 90 रुपए का चॉकलेट आ गया, दाम गिर के। रिया now starts buying 80 chocolates. That's a huge jump. But true false, ये अगर अब 50 रुपये पे भी आ जाता है, रिया नहीं बोलेगी कि मैं फालतू में नमक अब 4 kg एक्स्ट्रा खाऊंगी, जितना खाती थी लगभग उतना ही खाएगी, मे भी 1 kg एक्स्ट्रा बढ़ा देगी। The reaction is going to be different. Every single commodity will not react in the same proportion. Price will fall, quantity will rise. Yes, that is true. मैं अगर किसी को मारूंगा ना, every action has an equal and opposite reaction. एक रिएक्शन तो आएगा। अब वो रिएक्शन मेरे ओरिजिनल से ज़्यादा होगा, कम होगा कि इक्वल होगा, दैट विल डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन।
नाउ कमिंग बैक, जो आप ज्ञानेश को देख रहे थे, आई एम श्योर यू दे आर रेफरिंग टू सम साइड हसल दैट यू आर डूइंग और यू आर प्लानिंग टू डू. बट इफ यू नो, आई टेल यू हाउ आई यूज इट इन माई बिजनेस, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा या जो मेरे को ज्ञान है, अगर मैं वो अप्लाई नहीं करूँ, सो आई एम अ हिपोक्रेट, है ना. If I am teaching you these things and I am telling you this will apply in your future, I should be somewhere applying this here. I don't know whether this is true or not, but my analysis, रुकिए, किससे स्टार्ट था? Anya, Amira, sorry. Amira, I believe maybe, in the last 13-14 years of my teaching, I have realized that generally वन सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट ज्वाइन करता ही करता है. अब मे भी वो अकाउंट्स के लिए हो या इको के लिए हो. तो मेरा एक सब्जेक्ट का फीस ना मैंने थोड़ा हाई रखा है, 1500, लेकिन मैंने एक बहुत तगड़ा डिस्काउंट दिया है, प्राइस लो कर दिया है कि अगर आप मेरे से 2 सब्जेक्ट पढ़ो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट माई प्रोडक्ट इज हाईली सेंसिटिव टू प्राइस. इफ आई रिड्यूस माई प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू रिएक्ट टू अ ग्रेट प्रपोर्शन. यहीं पर सोचिए, अगर आप जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का है जहां रिएक्शन कुछ खास आने नहीं वाला है, थिंक अबाउट इट एंड आंसर, वुड इट बी वाइज और नॉट टू डिक्रीज द प्राइस, और वुड इट बी वाइज टू इंक्रीज द प्राइस. आप जानते हैं कि दाम बढ़ने गिरने पे रिएक्शन कुछ खास आएगा नहीं, तो दाम बढ़ाना ही बेटर होगा, हाँ या ना. सो अगर आप अपनी इलास्टिसिटी को समझ पाते हैं, अपने कमोडिटी का रिस्पॉन्स समझ पाते हैं, आप मार्केट को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं. टेल मी अ बिजनेस दैट एंटर्ड एंड डोमिनेटेड एंड हैज रिमूव्ड ऑल कंपटीशन बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी. जियो. इट अंडरस्टूड दैट पीपल का प्राइस पॉइंट विद इंटरनेट इज टू गिव देम फॉर फ्री once you get them hooked onto it, they are still going to buy it even if you increase the prices to it. If you understand that the commodity that you are selling is responsive or not responsive to price change. Think of some commodities, Aryan, where the price rise or fall, you will not react a lot. Matchsticks, agreed. ऐसा तो नहीं होगा कि दाम गिरने पे आप आज से हम 4 मैचस्टिक एक्स्ट्रा जलाएंगे. Salt, okay. Anything else? How many of you had booster doses for COVID? 700 रुपये लिया होगा. 600 में क्या 5-6 तो इंजेक्शन लगवा लेते. ये दाम गिरा है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, प्राइस फॉल, 16-17 तो वैक्सीन लगा लेते हैं उसी कोविड वाले का, नहीं ना. दाम बढ़ने पर भी एक लेते, दाम गिरने पे भी आप बोल रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ा. आपका रिएक्शन क्या है सर? आप अपना देखेंगे कि गांव का देखेंगे? यू कांट असेस समबडी एल्सेस डिमांड, राइट? You can only assess your demand or the market demand, and market demand is the summation of individual demand. Something else, Himanshi, in case of a price rise or fall, your response will come to a great extent, and Swiggy takes a lot of advantage of this. Food items. बोलता है भाई सुनना, 2 रोटी ऐड करना, जंबो डिस्काउंट देंगे. Have you seen this strategy? If you can go above 100, if you can go above 500, I will reduce your price. Because they understand food items में people are very responsive. And I don't know whether I'm able to convey what I'm trying to teach. I am from a school which is St. Thomas's Boys School. आप नाम सुने उसका? It is famous for a lot of negative things. But I'll tell you the best thing that I have learned. हमारे स्कूल में ना बहुत गंदा अब्यूजेज और लैंग्वेज, अब आपके स्कूल में भी होता है, हमको भी पता है, पर हमारे स्कूल में आई थिंक वहाँ पे कोर्सेज हैं कि कौन सी गाली कब दी जानी चाहिए, मतलब पढ़ाया जाता है. मतलब द लैंग्वेज इज नॉट वेरी नाइस इफ आई एम बीइंग एज पोलाइट एज पॉसिबल. अब अगर आप किसी को गधा बोलते हैं तो ऑप्शंस क्या क्या है? एक आदमी बोले यार छोड़ना है, भौंक रहा है, भौंकने दो, मेरे को बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक रिस्पॉन्स है. दूसरा, गधा के बदले आप उसके पूरे खानदान का उद्धार कर दें, ऐसा कोई रिश्ता नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी एक अलग रिएक्शन है. गधे के बदले गधा बोल दो, इक्वल रिएक्शन है. गधे के बदले गधे के बाद 2-3 गाली और दे दो, वो भी एक रिएक्शन है. गधे से कम गाली दे दो. रिएक्शन इज गोइंग टू बी देयर, बट रिएक्शन इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वी आर एज अ academic concept trying to understand what kind of different reactions are we going to get when prices fall. Quantity will rise, established.
When prices will fall, quantity will rise, prices will rise, quantity will fall, established. But will it increase in the same magnitude? Or will it decrease in the same magnitude? That is the question. So elasticity of demand का definition है the degree of responsiveness. लिखते हैं चलिए, the degree of responsiveness, it is the degree price elasticity of demand. हाँ, price elasticity of demand is मतलब definition है degree of responsiveness of किसका? रिएक्शन कौन दे रहा है? क्या कंज्यूमर का क्या रिएक्शन है? क्वांटिटी डिमांडेड में रिएक्शन है. सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू क्या? ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस. If you are going to be very sensitive to price, tell me a very good marketing strategy people use when they know buy one 10%, buy two 20%, buy three 30%, buy five 50%. They know that people will react to these kind of discounts. But have you ever noticed Armani or these people, they don't give these kind of sale discounts. Because they know anybody entering into that shop is not looking for a low price or a reduction in price. They know their target market. They know that it will not be a smart move to increase the price, decrease the price, because it is not going to bring in any more customers. 16,000 की जीन्स अगर 12,000 की हो जाती है, which is a substantial fall, approximately 25% discount, still 90% of us will not enter Armani. Now that is a very subjective thing, sir. मेरे हिसाब से a lot of people might react to jewelry, a lot of people might not react to jewelry. Agreed. If you have purchasing power, now think. For me, why did I give the Armani ka example is not because I assumed that none of us can't afford Armani. I am assuming that you are very well-to-do and you can afford Armani. It's just that 12,000 for a jeans is not feasible for you. 12,000 रुपया आप खर्च सकते हो, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, पर 12,000 की जीन्स का आपको वर्थ मिलेगा, वो शायद मैं नहीं मान रहा हूँ. For someone you might get it, for someone you won't. So that is going to be different. Yes, but it is possible. है ना? सपोज सोचिए, मैं उल्टा एग्जाम्पल देता हूँ जो आप बोल रहे हैं. घर में शादी है, प्राइस बढ़ जाता है ज्वेलरी का, लेना ही पड़ेगा. आप नहीं बोल सकते हैं डिमांड कम हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड. So yes, it is possible that it is not going to have a lot of reactions. But first, understand what elasticity is. The quantity demanded will respond. That is confirmed. But to what extent? है ना, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ रिया. मैं बहुत प्राउडली इस बात को मतलब मार्केट भी करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी करता हूँ दैट व्हेन आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ माई फीस, लेट्स से द लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, है ना. श्रेष्ठा लास्ट ईयर ना मेरा फीस 1400 था और भगवान की कृपा से हम लोग 300 स्टूडेंट्स को टच किए थे, 310 पे गए थे. मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं ईजियर रख रहा हूँ. इस साल मैं 1500 पे जा रहा हूँ. मेरी फीस बढ़ा दी है मैंने, लेकिन भगवान की कृपा से बढ़ा ही है. मैं बोल रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड को मेरे को तोड़ना नहीं है, मेरे को अदर थिंग्स कांस्टेंट रखना है. मान लो ना गिर गया, 290 पे आ गया, मेरे 10 स्टूडेंट कम हो गए, पर एक बार आप चेक करके देखो मेरे को पहले से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं कि नहीं. 1000 से कई ज़्यादा सर. अब मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार कितना आता है. 1400 इंटू कितना है ये, 300 से करना है. 1400 इंटू 300 कैलकुलेटर पे मार के दीजिए एक बार. 4,20,000 और एक बार 1500 इंटू 290 बताइए. 15,000 रुपया बेसी आया है 10 बच्चा कम पढ़ा के. भैया पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड काम किया कि नहीं. हमको यहाँ पर कोई अवार्ड चाहिए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स टॉट कि मेरा मेन मोटिव है प्रॉफिट. तो मेरे लिए मैटर क्यों करता है कि अगर हम 300 पढ़ाने की 290, है ना. रिया, व्हाट इज बेटर देन मनी? ओनली थिंग बेटर देन मनी इज मोर मनी. पहले से ज़्यादा क्या आ रहा है? 4,20 आ रहा था, अब 4,35 आ रहा है. ये लेके रोए क्यों हम? अरे 10 स्टूडेंट चला गया, क्या फर्क पड़ता है.
मेरे को मैटर क्या करता है? मोर रेवेन्यू, है ना? सो इट डजंट मैटर. सो इलास्टिसिटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. विधि, हैव यू एवर मतलब फेस्ड अ वेरी वेरी हाईली inelastic demand while booking Uber? They have exponentially increased surges, but still we've gone and bought it. मेरे साथ हुआ है. आपको, आप मत मानिएगा कि जब स्ट्रगल पीरियड था ना, ये उबर तो उतना इजीली अवेलेबल नहीं था. तो क्या करते थे ना, वो टैक्सी होती थी येलो वाली, और येलो वाली वाला दाम बढ़ा देता था. हिसाब कैसे होता था मालूम है भैया? महावीर तल्ला तक छोड़ दीजिएगा, वहाँ से हम पैदल चले आते थे. वो बोलता था 30 रुपया लगेगा, मेरे पॉकेट में 20 था. प्राइस बढ़ा दिया. तो लॉ ऑफ डिमांड मेरे लिए काम तो किया ही. जहाँ मैं घर तक सर्विस लेता, मैं पहले उतर गया, पर उतना चेंजेस नहीं कर पाऊंगा. कुछ जगहों पे मैं चढ़ूंगा ही नहीं. कुछ जगहों पे आई विल रिस्पॉन्ड ड्रास्टिकली. दैट इफ माई प्राइस चेंजेस बाय 10%, आई इंक्रीज माई क्वांटिटी, लेट्स से बाय मोर देन 10%. तो इफ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल, व्हाट वाज पुष्पनील? When I hit him, did he react? So you know what he is? He is saying that 100 रुपये में भी 5 लूंगा, 1 करोड़ का भी हो गया ना तो भी 5 लूंगा. अब 5 ही लेना है. अब मेरा आंसर सुनिए, इसको लेके बहुत डिबेट है स्कूल्स में. ये एग्जिस्ट नहीं करता. दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एनी काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर लाइक ऑटिज्म, डिप्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट? All mental disorders as per DSM-5, you know, they can't be said इसको ना डिप्रेशन है इतना पर. एक स्पेक्ट्रम होता है. तो मान लीजिए अगर आप कभी भगवान ना करे कोई मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में, ऑटिज्म या वॉट एवर, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हाँ ये डिप्रेस्ड है तो इसका ना पूरा टाइम रोता ही रहेगा. एक नॉर्मल हंसमुख आदमी भी डिप्रेशन से डायग्नोज हो सकता है. पॉइंट क्या है भैया? देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर इज एन एंड पॉइंट. Whenever we have a starting point, it is 0. It is कि आपको डिप्रेशन नहीं है. Lack of depression is 0. And I guess we should not be joking about it, but the last straw that is pulled in depression is generally giving up their life. That is infinity. That is the last stage. So there are only 2 broad spectrums of starting and pointing of something, which is a range, 0 and infinity. Everything in reality लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी. आज भी 2 ही चीज़ है. अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं, एजुकेशन या नॉलेज. आई बिलीव द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी नॉलेज. नोबडी कैन से मेरा नॉलेज ना 1000 गुना है. वी हैव अ स्पेक्ट्रम. आइदर यू डोंट नो और यू नो इन्फिनिटी, नॉट मेजरेबल. एवरीथिंग इन रियलिटी दैट इज मेजरेबल लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी. सो वी हैव अबाउट 3 main reactions. One is the equal reaction, which was I think Khushbu. I hit her at 60 km/h का speed. How did she respond? So it's a draw. For example, Khushbu 10 रुपये में 100, 9 रुपये में 110. अब आपको लग रहा है नहीं ये इक्वल नहीं है. मैम, वी ऑलवेज कंसिडर द परसेंटेज चेंज. प्राइस कितने से गिरा? व्हाट परसेंटेज? मैम, इफ यू आर बैड विद परसेंटेज, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100. कभी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो ना जीवन में, तो चेंज कितना से हुआ? बाय ओरिजिनल. चेंज कितने का है? 1 आउट ऑफ 9 नहीं 10. ओरिजिनल 10 था. 1 आउट ऑफ 10 इज 10%. और यहाँ चेंज कितने का है? 10%. तो यहाँ पे कितने का चेंज है? 10% का. प्राइस ने कितने से थप्पड़ मारा? और 10% से. परसेंटेज में प्राइस ने कितने से थप्पड़ मारा? क्वांटिटी का रिएक्शन कितने से आया? अच्छा ये बताइएगा थोड़ा. ये 1000 था, ये 1100 हो गया. 10%. भैया पर ये 1 रुपये से गिरा और यहाँ पर 1000 से बढ़ गया. वी डोंट लुक एट एब्सोल्यूट चेंज, वी लुक एट परसेंटेज चेंज. If the percentage change of QD and price are equal, we say that you are unitary elastic. अब इसमें मैं पूरा लिखवाऊंगा. मैं आज आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ. आज कुछ नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ बात करूंगा आपके साथ इलास्टिसिटी को लेकर. तो यूनिटरी इलास्टिक मतलब तनिष्क ड्रॉ. मैं आपको 60 का मारा, आपने मेरे को 60 का मारा. लेकिन आपको याद है मेरे को वंश ने 60 से ज़्यादा का मारा था. वो होता है ED ग्रेटर देन 1. ये 1 है ना. यूनिटी मतलब यूनिटरी मेथड मतलब 1. तो 1 से ज़्यादा है
तो मैंने 60 का मारा, वंश ने 60.01 मारा, तो भी 1 से ज़्यादा है। जितना मैंने मारा उससे ज़्यादा रिएक्शन आया। अगर मैं 10% से गिरा हूं, उसको 10% से ज़्यादा बढ़ना होगा। अगर वो 10% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका नाम होगा इलास्टिक कमोडिटी। इलास्टिक की रिस्पॉन्ड करता है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप वो देखे हैं क्या, कैप्टन अमेरिका वाला वो देखे हैं क्या, एज ऑफ अल्ट्रॉन? वो ट्राई करता है, उस टाइम में हैमर नहीं उठता उससे, है ना। सोचिए पूरी दुनिया का ब्रह्मांड का दम लगा लिया था पर वो हैमर नहीं उठा पाया था। क्या वो इलास्टिक है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है? मतलब कोई चेंज नहीं होगा, वो एब्सोल्युटली नो चेंज, वो ना लैक ऑफ इलास्टिसिटी है। और ये पता है क्या है, कोई ऐसा मैजिकल रबर बैंड आप हाथ लगाए तो अनगिनत हो गया। मतलब ये क्यों हाइपोथेटिकल है? दे आर सेइंग एट 10 रुपीज आर्यन इज बाइंग 1000 एट 9.9999 कितना से गिरा? अनगिनत खरीदेगा बोल रहा है। भाई ये तो पागलपन है। देखिए ये भी पागलपन है। अगर पुष्पनील चाहे कोई भी हो, हम बोल रहे हैं आपको, कोई भी आपको मारे ना, आप चुप मत बैठिएगा। इफ एनीबडी इज हिटिंग यू, यू विल डिफेंड योर सेल्फ एटलीस्ट। नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ये दोनों हाइपोथेटिकल है। ये बोलना कि दाम अगर 100 रुपए से 0 पे चले जाता है तो भी मैं 5 लेता था, आज मैं 5 ही लूंगा, ये संभव ही नहीं है। और ये बोलना कि 100 रुपए में मैं 5 लेता था, 101 रुपए में मैं 1 भी नहीं लूंगा, ये भी संभव नहीं है। ये दोनों एक स्पेक्ट्रम के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है। इसलिए इसका नाम क्या दिया जानते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। द वर्ड परफेक्ट इन इकोनॉमिक्स इज नॉट हाउ आइडियल अ सिचुएशन इज। द वर्ड परफेक्ट इन इकोनॉमिक्स मीन्स हाइपोथेटिकल। आप में से जिन बच्चों का क्लास 9-10 में इको था, देयर यूज्ड टू बी अ परफेक्ट कंपटीशन। इट वाज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, इट वाज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर ऐसा होता कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फ्री एंट्री फ्री एग्जिट में होते, विद नो सेलिंग कॉस्ट, होमोजीनियस गुड्स बेचते, तो उस मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता। एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस, एनी, योर क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज। अब इस पर बहस सुनिए। स्कूल्स में बोलता नहीं एग्जिस्ट कर सकता है सिचुएशनली, एंड आई एग्री टू दिस। दे सेड दैट इफ इट इज अ लाइफ सेविंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, 25,000 की है सर, आपको 2 मेडिसिन लगेगी, आप लेंगे। 1 लाख की हो जाती है तो भी लेंगे। 1 करोड़ की हो जाए तो एग्जैक्टली पैसा होगा तो लेंगे। पर किस आदमी के पास अनलिमिटेड पैसा है? मुकेश अंबानी के पास है? अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है। अगर हम बोले एक दवाई, मतलब आई प्रे एंड आई होप that you never have to reduce medicines because of price. If you talk to people who've seen bad times, including my family, everybody goes through good times and bad times. I remember my mom, she had to have a medicine 3 times a day and we were going through tough times. So she reduced it twice a day. It is very common in normal middle class houses to reduce your medicine when the prices becomes exponentially high. अगर ऐसा सच होता ना कि दाम कितना भी चला जाए तो सारे लोगों का इलाज होता और कोई भी हॉस्पिटल से लैक ऑफ केयर की वजह से नहीं मरता। देयर आर मेनी टाइम्स वेयर पीपल डोंट पे द बिल एंड दैट इज वाई दे लूज देयर लाइफ, कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते और क्योंकि अनगिनत पैसा किसी के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक सिचुएशन का बात करें कि 100 रुपये में और 2500 में और पैसे हैं, तब आपका डिमांड इनइलास्टिक परफेक्टली माना जा सकता है, पर सिचुएशन के तौर पर हाइपोथेटिकल है। इन रियलिटी देयर इज नो कमोडिटी विच आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ विच एनी प्राइस यू वुड बाय द सेम क्वांटिटी, बिकॉज एट सम पॉइंट योर डिमांड will convert into your desire because nobody has unlimited purchasing power. Does that make sense? तो डिमांड से उसका क्या लेना देना? मेरे को ये बात है, डिमांड का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी की जितना तेरे को खरीदना है। सोच बाजार में है ही नहीं कमोडिटी, इको पढ़ना था तेरे को 11 में मेरे से, डिमांड था कि नहीं था?
हम तो पढ़ा ही नहीं. Demand has nothing to do with availability. That is ex post. Demand definition is desire backed by purchasing power. हम तो तुमको बोले थे मेरा लाइफ लॉन्ग डिजायर, हमको लगता है मरेंगे इसके साथ. राफेल नडाल एंड रॉजर फेडरर लाइव मैच देखना था हमको. हम लाख रुपए टिकट देने के लिए भी रेडी हैं, जहां पर भी हो हम जाएंगे, है ना. सोचिए अगर आपको में से कोई फुटबॉल फैन है, आपको बोले कि वन मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लायनल मेसी, बताओ ना, अगर आपके पास पैसा होगा आप कोई भी दाम पे नहीं देखोगे वो मैच. या अगर आपको बोले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बैटिंग टुगेदर, हम तो कुछ भी देने के लिए रेडी है भाई, घर बेच दें हम उसके लिए. बट पॉइंट क्या है, अवेलेबल नहीं है. इट डजंट चेंज द फैक्ट दैट यू स्टिल हैव डिमांड. डिमांड हैज नथिंग टू डू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, नथिंग. किसी का भी हो सकता है. वॉट वी आर स्टडिंग हियर दैट द क्वांटिटी विल रिएक्ट with changes in price. Is the reaction going to be sensitive to price or insensitive to price? That is what we are looking at. जीतेगा कौन, प्राइस का चेंज कि क्वांटिटी का चेंज. मतलब मैं जीतूंगा कि आप लोग. अगर मैं 60 की स्पीड में मार रहा हूं और 60 की स्पीड से नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, आप रिलेटिवली इनइलास्टिक है, रिएक्शन कम आएगा आपका. मैं 60 में मारूं और आप 60 से ज़्यादा का रिएक्ट करें, मैं बोलूँगा आप रिलेटिवली इलास्टिक हैं. मैं 60 की स्पीड में आपको मारूं, आप 60 में वापस मारें, हम बोलेंगे आप यूनिटरी इलास्टिक हैं. मैं 60, 100, 100 करोड़ की स्पीड में मारूं, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप परफेक्टली इनइलास्टिक है, हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं. आप हल्का सा दाम पे इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, आप परफेक्टली इलास्टिक है. इन्फिनिटी को तो खुद ही मापा नहीं जाता, इट इज नॉट मेजरेबल, है ना. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड इन्फिनिटी. एंड आई मतलब होल्ड दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जिस इंसान ने ये गंदगी किया, दैट 2 पैरेलल लाइंस विल मीट एट इन्फिनिटी. मेरे चाइल्डहुड का 4 से 5 घंटा खराब किया है वो आदमी. हम जेन्युइनली बोल रहे हैं, हम ट्रेन ट्रैक पे गए थे और लगा कि एक बार इन्फिनिटी तो आएगा, 2 पैरेलल लाइन है, और हम चलते गए 4-5 किलोमीटर, कुछ नहीं आया. फिर हमको रियलाइज हुआ कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इन्फिनिटी बोल के कोई जगह ही नहीं है. बोल रहा है इन्फिनिटी पे वो 2 लाइंस मीट करेंगी. इन्फिनिटी कहाँ है, एग्जिस्ट नहीं करता है. सो दैट इज वाई परफेक्टली, मैं और मेरे 4 पागल दोस्त, हम लोग मैथ का थ्योरम प्रूव करने गए थे कि गलत है, कि 2 लाइंस विल नॉट मीट एट इन्फिनिटी, है ना. कोई करता है ना, तुम लोग भी बेवकूफ़ी करता होगा स्कूल फ्रेंड्स लोग. हाँ, हम लोग का ना बकवास और बेवकूफ़ी पढ़ा लिखा होता था. तुम लोग क्या करता होगा वो सब, कि चॉकलेट बम डाल दिया उसमें, पानी का टंकी में, ये कर दिया. तुम तो दहेज लेता है शायद, है ना, शादी. एनीवे, जोक्स अपार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टुडेज डिस्कशन. सो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस इज प्राइस इलास्टिसिटी. अगर वो रिएक्शन ज़्यादा है श्रेष्ठा, हम क्या नाम देंगे उसको, इलास्टिक है. अगर रिएक्शन कम आ रहा है तो, इक्वल आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक है. रिएक्शन ही नहीं आ रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक. और अगर ऐसा रिएक्शन आ रहा है जो मतलब इमेजरेबल है, मतलब आई एम श्योर गर्ल्स विल अंडरस्टैंड दिस बेटर देन गाइस, है ना. मतलब विधि सोचिए, आपको डीएम में एक अननोन नंबर हाई आया, कुछ लोग 5 तरीके से रिएक्ट करेंगे. पहला रिएक्शन होगा आप इग्नोर करेंगे, है ना. कुछ लोग रिएक्शन नंबर 1, हाई आई वांट, क्या ऐसा होता है ना, वांट मेक फ्रेंडशिप, आया नहीं आप लोग को. हम मान ही नहीं सकते कि आप लोग को नहीं आया है. नहीं बोलता है आजकल, हम लोग के टाइम पे तो बहुत बोलता था यार, वहीं पे कैंसिल हो जाता था. आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप, ठीक है. तो पहला रिएक्शन रिया, पहले ही हम जानते हैं, ये सुन के भैया ब्लॉक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है. तनिष्क में भी हाई का बदले हाई, सपोज यूनिटरी इलास्टिक. श्रेष्ठा हाई आया था, वो लिख रहे हाई हाउ आर यू, रिएक्शन उससे ज्यादा है. और मान लीजिए अनवी हाई का रिस्पॉन्ड एक अंगूठा दे रही है, थम्स अप, या लाइक कर दे रही है. रिएक्शन है पर उतना नहीं है,
मान लीजिए अमायरा को कोई हाई भेजा, ओके आई विल मैरी यू, ऐसा रिएक्शन तो नहीं होता है ना? बट देर आर 5 डिफरेंट रिएक्शंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. हाँ, ऐसा हुआ है क्या? हाँ, अच्छा अमायरा तुमको साइड आई दे रही है, क्लास के बाद अपने डिस्कस करते हैं. हाँ, क्लास के बाद पक्का. तुमको नाम बताना होगा हमको, जो अभी बात की हम लोग. अच्छा, सो कमिंग बैक, सुनिए ध्यान दीजिए. हेलो, फोकस. नाउ कम बैक टू द academic perspective. I want to understand, not write today. Riya, I'm not going to write anything today. Neither I'm going to dictate anything today. I just want you to understand elasticity, and I want you to tell me certain factors that might make your product elastic or inelastic. Matlab, what are the factors that are going to affect your elasticity? Like there are factors affecting your demand, right? What are the factors that are going to affect your elasticity of demand? मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप मत लिखिएगा, मैं इस पे अलग आपको लिखवाऊंगा क्लास में जब तब बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट हमको लगता है इज अवेलेबिलिटी, स्पेलिंग गलत हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. इंडियन रेलवे के कितने सब्सटीट्यूट्स हैं? मतलब लॉन्ग सब्सटीट्यूट जाए तो आप बोल सकते हैं बाई ए जा सकते हैं, बाई शिप बहुत दूर का सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. तो अगर IRCTC में अगर दाम बढ़ जाता है, do you have a lot of places to shift to? So what kind of an elasticity would that have? Inelastic. Very good answer. But what about one aviation in, अगर एक ही कमोडिटी बेचने वाला एक मात्र अकेला CSC इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है और CSC दाम बढ़ा देता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या आप ड्रास्टिकली छोड़कर दूसरे के पास जा सकते हैं कि एक ही है आपके पास सेलर? देखिए रिएक्शन तो आएगा, आप चेंजेस तो करेंगे, आप मे बी वैक्यूम क्लीनर पे शिफ्ट मार देंगे, चेंज कर देंगे, या आप वॉशिंग मशीन यूज़ करना छोड़ देंगे, या आप इंडक्शन कुकर बंद कर देंगे. पर कुड यू शिफ्ट टू अ डिफरेंट प्रोड्यूसर बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल? बट व्हाट इफ यू आर इन मुंबई? कोई है अपना ऑनलाइन मुंबई वाला? नहीं. या बैंगलोर? आप जानते हैं यहाँ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी अडानी भी देता है, रिलायंस भी देता है, बाकी लोग भी देते हैं, टाटा देता है. विधि, फोन छोड़ना होगा. इफ सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल एंड प्राइसेस चेंज, डू यू हैव ऑप्शंस टू गो टू अदर पीपल? व्हाट विल हैपन? इलास्टिक. मतलब मेरा ड्रीम है रिया, भगवान करिए कलकत्ता में एकमात्र एक ही इको टीचर है, मैं दाम बढ़ा भी लूंगा, हमारा आप कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ, सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए विधि. हाँ, मैनिफेस्ट करना. मेरा तो ड्रीम जानते हैं क्या है? मेरे को ना वो सब नहीं है कि मेरा चॉपर हो ये वो. हमको एक बार कपिल शर्मा का शो पे जाना है, नॉट एज ऑडियंस. जैसे वो खान सर को बुलाया था वैसे हमको बुलाए कि इंडिया में लीडिंग टीचर्स में से आते हैं रोहिन खन्ना, वैसा मेरा वो ड्रीम है. तो सिमिलरली मान लीजिए कलकत्ता में एक ही इको टीचर है, अच्छा नहीं एक ही है, अच्छा बुरा का बात ही नहीं हो रहा है. There is no substitute and I keep increasing my price. Law of demand will work, but to what extent? You still have to come to me. But if you see the situation today, हर घर में ट्यूशन अवेलेबल है. मतलब किसी के पास भी फ्री टाइम है ना और उसको थोड़ा बहुत कुछ भी आता है, वो क्या करता है, घर से ट्यूशन पढ़ाता है ना. मोर देन एनीथिंग इट हैज बिकम अ पॉकेट मनी थिंग, है ना. अरे फ्री बैठे हैं घर में, क्या करें, छोटा बच्चा लोगों को पढ़ा देते हैं. बट पॉइंट क्या है, सब्सटीट्यूट अवेलेबल तो है ना. चिराग, आई एम श्योर आप 11 में 12 में तो आप मेरे पास ही आए, 11 में मेरे से कम पता तो किए होंगे और कौन कौन पढ़ाता है. यू मस्ट हैव एटलीस्ट आस्क्ड अराउंड, यू शुड हैव आस्क्ड अराउंड कि व्हाट आर माय ऑप्शंस अवेलेबल, कि ये है ये है ये है ये है. अब सोचिए अगर मैं दाम चेंज कर दूं, दाम बढ़ा दूं, सो यू हैव अदर पीपल टू गो टू, राइट. सो इफ द सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, इट इज गोइंग टू बी इलास्टिक रिलेटिवली. एंड इफ द सब्सटीट्यूट्स आरंट अवेलेबल, है ही नहीं, एक ही है, लेना ही पड़ेगा, तो इनइलास्टिक. अग्रीड? अगेन आप सर प्रोड्यूसर पे चले गए, है ना. आप प्रोड्यूसर पे मत जाइए, कंज्यूमर बने रहिए.
नहीं सर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो प्राइस फॉल करने पे लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करता है। ये बता रहा है कितना डिग्री से प्रूव करता है, ज़्यादा रिएक्ट करोगे कि कम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता था दाम बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ेगा गिरने पे, और दाम बढ़ने पर क्वांटिटी विल फॉल। दिस वाज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये बता रहा है कितना से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा कि कम रिएक्शन आएगा। अगर तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे आप अगर कभी यूरोप जाएंगे ना, वहाँ पर जो ट्रेन सेगमेंट है ना, हर देश का अलग ट्रेन है एंड दे वर्क अंडर यूरो रेल, तो 36 सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। लेकिन भारत में अगर IRCTC दाम बढ़ा देता है, हमको IRCTC से ही सर्विस लेना होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। 1991 से पहले मात्र एयर इंडिया ही था। LPG पढ़े हैं ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, उससे पहले था ही नहीं। एकमात्र अकेला इंडियन एयरलाइंस तब जो था वही एविएशन इंडस्ट्री चलाता था। तो दाम बढ़ाने पर भी आदमी क्या कर सकता था, उसको उधर ही आना पड़ता। हाँ, मे भी 5 ट्रिप नहीं करके 4 ट्रिप कर लेता था, पर उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। अग्री करते हैं? हैबिट्स मैटर करेगा। मतलब मैं प्रे करता हूँ ये किसी के लिए सच ना हो, पर मान लीजिए चिराग एक अल्कोहलिक है, मान लीजिए, ऐसा है नहीं, हमको मालूम है, 100% मालूम है। प्राइस राइज करने पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है दर्श? पर ये सर शराबी है, ये थोड़ा बहुत कमाएगा, एक का ढक्कन कम कर देगा, पर उतना डिमांड नहीं चेंज करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ओकेजनली ड्रिंकर है, दाम बढ़ने पे क्या बोलेगा, हमको पीना ही नहीं है भाई, इतना महंगा, कोई दरकार ही नहीं है। इफ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, like I'll tell you my example, when I had gone to Greece, I told you that it was 10 euros approximately for a cup of black coffee. You know what is a black coffee? Water and coffee. 1 रुपया का नेस्कैफे का सैशे आता है और पानी फ्री रहता है, उसका मेरे से 800 रुपया लिया ये लोग, और मेरा ऐसा एडिक्ट पिया भी है। I had an inelastic demand. In certain cases when you are addicted to something, अगर आपको किसी चीज़ की लत है, इफ़ यू आर हैबिचुएटेड टू अ लाइफस्टाइल और अ प्रोडक्ट, द प्राइस राइज और फॉल इज नॉट गोइंग टू जनरेट अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज यू आर हैबिचुएटेड। अग्रीड? वॉट एल्स सर डू यू थिंक दैट कैन डिटरमाइन योर इलास्टिसिटी? आई विल टेल यू। नंबर 3, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 1, if it is a necessity, it has to be inelastic. What is the definition of a necessity? You need it, it's required. Price rise, fall, लेना ही पड़ेगा. But what if it's a luxury? Tell me one thing that you've been postponing for a very long time. I'll tell you what I kept postponing was my PS5. मैं ले आई नहीं, एंड में जाके मेरी वाइफ मेरे को गिफ्ट की, थोड़ा दाम कमे ना वो लेंगे, थोड़ा दाम कमेगा तब लेंगे, दाम कमे, क्योंकि ज़रूरत नहीं था. It was not a life change. It's a better example, sir. There are 2 times when people buy phones. Number 1, when the phone breaks and you need it instantaneously. And second, then they plan it. आप नोटिस करिए, प्लान वाला ना वो वेट करता है, थोड़ा गिरे यार तब लेते हैं. लेकिन अगर अभी लेना ही पड़े, सिचुएशन है कि नेसेसिटी है लेना, तब आपके पास इलास्टिसिटी तो नहीं है, आप इन इलास्टिक हैं. यू हैव टू बाय इट. अग्रीड? ऑल्सो, true false, perishability will matter. I'll give you a true example. When I was in class 11, I think, my mom told me to go and shop for papayas. Anybody has ever shopped for papayas? पपीता खरीदे कभी जीवन में? दुनिया का सबसे डिफिकल्ट चीज़ खरीदना पपीता होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं. वर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट फ्रूट टू बाय इज अ पपाया. आप पपाया सेलर, हम इंसान. जस्ट लिसन टू द कॉन्वर्सेशन. फर्स्ट टाइम आदमी गया है, भैया पपीता दीजिए. दूसरा, पहला सवाल, कच्चा कि पका? पहला फ़ोन गया, मम्मी कच्चा कि पका? मम्मी बोली बेटा पका हुआ लेके आना. फिर डिस्को कि देसी? एक होता है डिस्को पपीता, झूठ नहीं बोल रहे हैं आप, पूछ रहे हैं मम्मी पापा से. डिस्को पपीता वो विदेशी पपीता होता है, और एक होता है देसी पपीता, मतलब कार्बाइड वार्बाइड कम होता है. वो पूछिएगा, मम्मी बता देंगी आपको. हमको लगा मम्मी डिस्को की देसी, मम्मी बोली देसी, हम रख दिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज खाएंगे कि कल खाएंगे? हम बोले भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोलता है कि अगर आज खाएंगे तो वैसा वाला देंगे, नहीं तो सड़ जाएगा.
और अगर कल खाएंगे तो कम पका हुआ देंगे। हम बोला बक 5 kg बांध के दो। अब सोच कर देखिए होगा क्या, घर जाके मम्मी शाबाशी देगी। दाम कम है क्योंकि प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज, इलास्टिक कमोडिटी, मुझको लगा हम 10 kg ले आए, जो हम डांट खाए मम्मी से। बोले क्यों? बोलता ये तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाउ कैन आई स्टोर इट? बट इफ यू एवर बॉट स्टोरी बुक्स, इफ यू आर अ मतलब इफ यू रीड बुक्स, द मोमेंट वी गेट अ सेल, we buy 15-20 books or 5 books which we will not read this year maybe, but we say बाद में पढ़ लेंगे. Why? Because we can store it. If the storage is available and you get a good deal, won't you buy a lot of it? मतलब मैं ना बहुत वियर्ड शॉपर हूँ, मैं जब भी जीन्स खरीदता हूँ सेल पे खरीदता हूँ, एक साइज बड़ा एक साइज छोटा, क्योंकि नहीं पता कब वजन बढ़ने वाला है। और कब मेरा वार्डरोब में आपको मिलेगा 34, 36 और 32। 34 अभी मेरा करंट वेस्ट साइज है, 36 का जीन्स इन केस लाइफ गोज वेरी गुड एंड देन आई पुट ऑन वेट, और इफ आई गेट फिटर 34। भैया आपको डर नहीं लगता? का मस्त टैग लगा के रखा हुआ है यार, जिस दिन 34 के हुए पहन लिए, जिस दिन 36 के हुए 36 वाला पहन लिए, खराब थोड़ी ना होगा, बिकॉज दे आर नॉट पेरिशेबल। अमीरी नहीं रे, 80% 70% ऑफ है यार, तुम समझो। अमीरी का उल्टा है, आई एम बाइंग एट डिस्काउंट्स। आप सॉर्ट करते हैं कैसे? हाई टू लो। हम करते हैं सॉर्ट हाई डिस्काउंट टू लो। आप कहीं मिंत्रा अमेजोन में जाओ ना, अगर हम आपको अभी दिखा दिया आप लेंगे 80% ऑफ जीन्स में? श्योर है? हम बोले आप करो ना, जाना अमेजोन में ऑप्शन है सॉर्ट बाय डिस्काउंट हाई टू लो। आप लोग जैसे क्या करते हैं, हम प्राइस हाई टू लो। मेरा जैसा आदमी क्या करता है, डिस्काउंट। पहले बताओ सबसे सस्ता आइटम कौन सा है, जो नहीं चाहिए वो भी ले लेंगे, डिस्काउंट में मिल रहा है। मेरी वाइफ एक दिन गुस्सा हो गई, बोली यार घड़ी क्यों ले ली है, घड़ी तो था घर में। बोला 4000 का घड़ी 400 में मिल रहा है, कैसे नहीं ले? 90% ऑफ। अभी भी घड़ी आप बिलीव करेंगे अलमारी में रखा हुआ है, कभी तो खराब होगा। दोपहर करंट घड़ी खराब थोड़ी ना हो जाएगा जो नया खरीदे हैं, पेरिशेबल आइटम नहीं है। अमेजोन ₹100 का घड़ी भी मिलता है सर। बट अगेन वो लोग रखा ही ये ऐसा कैटेगरी क्यों है फॉर पीपल लाइक मी, दैट दे विल बाय ओनली इफ इट एट अ डिस्काउंट, अदरवाइज वी वोंट बाय। सम ऑफ यू आर एब्सोल्यूट ऑपोजिट ऑफ दिस। वो होता है मैम रईसी। मेरी वाइफ बीइंग मैरिड टू अ रईस पर्सन, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। हम सबसे पहले कहाँ घुसते हैं, सेल कहाँ है। मेरी वाइफ अगर स्टोर में घुसेंगी पूछेंगी फ्रेश आइटम कहाँ है, सेल आइटम हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो कॉमन हो गया है। हम लोग लड़का लोग में हार्डली ऐसा आपको कोई मिलेगा जो बोलेगा एकदम भाई ये तो फ्रेश कलेक्शन का है, यही वाला पहनेंगे हम। ऑफ मिल रहा है बढ़िया, यही वाला दे दो, 4 तो बांध दो, हो गया। सेम कलर का 4 अलग अलग वो दे दो, काम खत्म। पर जनरली अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू बाय फ्रॉम सेल। हिमांशी से पूछिए, आई कैन सी इन हर आइज, भैया योर वाइफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पूछ लीजिए हिमांशी, आई सी अ सेंस ऑफ अप्रूवल इन योर फेस कि हाँ ठीक ही तो कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है। अगेन everybody has a very different elasticity, and for some things it is different, for some things it is different. With food I am very finicky and very on point regarding it. I will only buy if I think I need it. I will not go and buy only if I am saying एक नान लोगे तो 4 नान फ्री मिलेगा तो इसलिए खरीद लो नान, नहीं मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? With certain things you are going to behave in a very elastic manner, with certain things you are not. I think one of the best examples somebody gave me of a very highly elastic product was whey protein. If any of you are going to the gym or if you have whey protein, if the prices of whey proteins fall, I have seen students and me included have started to take protein twice a day. महंगा आइटम है यार, 5-6 हज़ार रुपये का डब्बा आता है अच्छा क्वालिटी वाला, तो अगर उसका दाम थोड़ा रिलेटिवली गिर जाता है तो उसका कंजम्पशन हम लोग बढ़ा देते हैं, और अगर भगवान न करे दाम बढ़ जाता है तो मे बी वी कम डाउन टू once in 2 days, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव।
समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? विथ सर्टन थिंग्स यू आर गोइंग टू बी इलास्टिक, विथ सर्टन थिंग्स यू गोइंग टू बी इनइलास्टिक. दैट इज आवर डिस्कशन. Acceptable? Fourth point I think is self-explanatory. Possibility of postponement of consumption. नहीं सर, आप अपना कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं कि नहीं. मेरे को लगता है इट इज एग्जैक्टली लाइक नेचर, नेसेसिटी. एनीथिंग दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इज अ नेसेसिटी. एनीथिंग दैट कैन बी पोस्टपोन्ड इज अ कंफर्ट और अ लग्जरी. सो इफ यू कैनॉट पोस्टपोन समथिंग, it is inelastic. If you can postpone something, it is elastic. Income range, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. प्लीज मत बात करिए, वंश एंड एवरीबडी फोकस करिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. बोलिए. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सुनिए ध्यान से. एक है कि आपका डिमांड बढ़ेगा कि कमेगा, वो है इनकम, सब्सटीट्यूट का प्राइस. यहाँ सब्सटीट्यूट का प्राइस का बात ही नहीं है. यहाँ सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कि नहीं उसके बारे में बात हो रहा है. और ये बात नहीं किया जा रहा है कि इससे आपकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा. ये किया जा रहा है कि आपका डिमांड का रिएक्शन कैसा आएगा. डिमांड बढ़ेगा कन्फर्म है, वो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में बात हो चुका है. कितना बढ़ेगा ये उस पर बात किया जा रहा है. दाम गिरने पर आप कितना ज़्यादा खरीदेंगे, कितना मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे. लाइक वे देयर इज अ सेल, नोबडी न्यू देयर वाज अ सेल. चिराग वांटेड टू बाय 10 टी-शर्ट्स, ही विल बाय मोर देन 10 टी-शर्ट्स, बट हाउ मच मोर डिपेंड्स ऑन हिज इलास्टिसिटी. प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल, प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज. दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड. दैट इज व्हाट वी हैव डन. बाय व्हाट परसेंटेज विल डिमांड रिएक्ट? Is it going to be a huge change or a nominal change or an equal change? That is what elasticity talks about. Absolutely different, totally different. बोलिए. Absolutely inelastic सर हमको लगता है. तो कितना ज़्यादा घूमने लगेगा. चलो आज दाम कम हो गया, जैसे फालतू में गेड़ी लगा के आते हैं. कुछ लोग के लिए हाँ, आई एम अग्रीइंग विथ यू. पर अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है ना सर, दाम बढ़ेगा गिरेगा, जितना का पेट्रोल भराता था 20 लीटर उतना का ही भराएगा, है ना. विथ सर्टन थिंग्स, सर्टन पीपल, दैट इज आई एम सेइंग ना, एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट रिएक्शन. दैट इज व्हाट वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. इनकम रेंज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. पता है क्या बोल रहा है? वेरी रिच एंड वेरी पुअर हैव इनइलास्टिक डिमांड. मतलब मुकेश अंबानी और गरीब आदमी, कौन सा गरीब, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब, ये लोग दोनों एकदम इनइलास्टिक है. और रीजन भी गजब का है. इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है. सोच कर देखिए, मुकेश अंबानी को फर्क पड़ेगा अगर 15 रुपए की मैगी 30 रुपए की हो जाती है. एक गरीब आदमी को फर्क पड़ेगा, वो तो पहले भी नहीं ले पा रहा था, आज भी नहीं ले पा रहा है. बोलते हैं वेरी रिच एंड वेरी पुअर. इसलिए नोटिस करिए, सेल से प्रभावित होते कौन है जानते हैं? मिडिल क्लास. सेल बनता ही नहीं है अमीरों के लिए, ना ही गरीबों के लिए. वो उनके लिए है जिनको लगता है कि ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं, पर अभी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, चलो उनको थोड़ा ऑफ दे दो. लेट्स इंड्यूस देम इनटू अ डिस्काउंट. सो द मिडिल इनकम पीपल, दे हैव अ वेरी हाईली इलास्टिक डिमांड. दे रिस्पॉन्ड टू दिस. दाम बढ़ा तो डिमांड गिरा दिए, दाम गिरा तो डिमांड बढ़ा दिए. पर जो बहुत अमीर है यार, उसको क्या फर्क पड़ता है, और जो बहुत गरीब है उसको क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो जितना खरीदना उतना ही खरीदेंगे वो. सो दे हैव अ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. और जो मिडिल इनकम वाले हैं, अनवी, दैट इज व्हाट इज इलास्टिक. सिमिलरली सिमिलर पॉइंट है, पर देखिए अलग दिया है तो मैं बस बता रहा हूं. प्राइस रेंज बोलता है बहुत महंगा और बहुत सस्ता. रोल्स रॉयस और माचिस की तीली दोनों इनइलास्टिक है. फर्क तो पड़ता है बीच के प्रोडक्ट्स में, है ना. वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, आई फाइंड देम टू बी वेरी वेरी रिलेटेड टू ईच अदर. क्योंकि इनकम रेंज वो महंगे वाले वही ले रहे हैं जिनकी हाई इनकम रेंज है, और वो लो प्राइस्ड गुड्स वही ले रहे हैं जिनका इनकम नहीं है. अग्रीड. नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली माय फेवरेट पॉइंट. नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी.
रिया आपका आंसर क्या है मैम? इफ अ कमोडिटी हैज मल्टीपल यूजेस देन व्हाट वुड बी योर डिमांड, इलास्टिक और इनइलास्टिक, एंड इफ इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ यूजेस देन व्हाट वुड बी योर डिमांड? ज़्यादा यूजेस है तो इलास्टिक होगा, एक ही यूज है तो इनइलास्टिक होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मिल्क, what if prices of milk go down? Yes or no, you start using it for butter, you start using it for ghee, you start using it for curd, you start using it for lassi, you start using it for buttermilk, you start using it for whey protein, छेना, पनीर, सब चीज़ के लिए आप उसको इस्तेमाल करने लगेंगे. लेकिन सर सोचिए सिरिंज का दाम अगर गिर जाता है, या आपके घर में हाउ मेनी थर्मामीटर्स डू यू हैव? 2-3 तो पहले बार सुने, मेरे घर में एक ही है. सोचिए देयर इज अ 50% ऑफ, 70% ऑफ ऑन अ थर्मामीटर. भैया 5 बांध दीजिए, वुड नेवर बी योर रिएक्शन विथ सर्ट, बिकॉज उसका एक ही यूज है, टेम्परेचर लेने के काम आएगा. एक इंजेक्शन का एक ही यूज है, टू आइदर ड्रॉ ब्लड और इंजेक्ट समथिंग इन योर बॉडी. अगर जस्ट बिकॉज इंजेक्शन आर नाउ 50% ऑफ, यू वोंट से आज से हम पानी इंजेक्शन से पिएंगे या हम कुछ उसको फालतू यूज करेंगे, नहीं होगा. Because it does not have any other alternative use. If it does not have an alternative use, where are you going to use it? हाँ, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि क्वालिटी में तुम बोल रहे दूसरा ले लेगा. बट थिंक अबाउट द क्वांटम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज ऑन नंबर्स. कितना ड्रास्टिक चेंज करोगे? नहीं करोगे. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड योर इलास्टिसिटी, थिंक अबाउट इट. इफ CSC हो आप, नहीं है सब्सटीट्यूट, क्या एडवाइस है आपको मिस्टर गोइंका के लिए? दाम गिराएं? नहीं सर, कुछ डिमांड खास बढ़ेगा नहीं, दाम बढ़ा दो. कुछ खास डिमांड गिरेगा भी नहीं. यू आर गोइंग टू एंड अप अर्निंग मोर विद हायर प्राइसेस. यस, क्वांटिटीज विल गो डाउन. From 300 students you will come down to 290, but still your revenue will be more than before. But if you know you are in a very highly competitive market with hundreds of substitutes available, कि हल्का से दाम बढ़ाओगे, have you ever noticed this, that Coke, Pepsi, Thumbs Up are priced equally? Because there is really no difference among the soft drink industry. I know आपका प्रेफरेंस हो जाता है कुछ कुछ बच्चा लोग का कि कोका कोला खट्टा है, थम्स अप झाल है, पेप्सी मीठा है. एज अ लेमैन पर्सन मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता. आप मेरे को दाम कमा के दो किसी एक का, मैं वही वाला लूँगा. इट डजेंट मैटर टू मी बिकॉज देर आर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल. सो इफ़ यू आर इन अ मार्केट व्हेन यू अंडरस्टूड योर प्रोडक्ट कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना यार, इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, दाम बढ़ा देना सही है, क्योंकि उसके बाद भी आप ही के पास आएंगे. लेकिन अगर आप जानते हैं कि हल्का सा मैं अगर कंपेटिटर से थोड़ा कम हो जाऊं, उसको छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, इतना हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट है मेरा, तो दाम गिराना फीजिबल है. सो इट इज अ वेरी जेन्युइनली यूजफुल चैप्टर, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन ऑफ द, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड दिस. When you are alone now, you can do something called price discrimination. Have you ever noticed that IRCTC discriminates with its own customers? They have a different pricing for people who are above the age of 60. They have a different pricing for people who are below the age of 12. And 8 years back, they had a different policy or different pricing for women. ये तो 8, 9, 10 साल पहले women ने बगावत की कि हम equal हैं, हमको कोई कंसेशन नहीं चाहिए. हमको लगा बेवकूफ़ी है, मिल रहा था तो फालतू में क्यों मना किए. यू डोंट हैव टू प्रूव ना, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कोई दे रहा है बेवकूफ़ की तरह, तो ले लेने का, एंजॉय करने का वो डिस्काउंट. बट ठीक है, वहाँ पर वो एम्पावरमेंट इशू आ जाता है, दैट यू आर क्लबिंग देम विद ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन, दैट इज दे डोंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप. बट अर्लियर और आज भी चिल्ड्रन का टिकट का फेयर अलग है, ओल्ड एज का फेयर अलग है, और 18 से ज़्यादा और 60 के नीचे का फेयर अलग है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, वो तो सर्विस है. इफ़ यू वांट अ हायर क्वालिटी यू गेट हायर क्वालिटी, इफ़ यू वांट लोअर क्वालिटी, आई एम सेइंग सेकेंड AC के लिए रिया अप्लाई करे, एक 60 आप अप्लाई करें और एक बच्चा 12 साल के नीचे अप्लाई करे, तीनों के अलग रेट्स हैं सेकेंड AC की सीट के. ये सिर्फ IRCTC ही कर सकता है, क्योंकि वो मोनोपोली है.
जिस दिन अगर कोई कंपेटिटिव फर्म जिसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है ये करेगा, सब छोड़ देंगे उसको, सारे 18 से 60 वाले दूसरे के पास जाएंगे। सोचिए इंडिगो अगर ये स्कीम निकालता है कि 18 to 60 वालों को हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो सारे 18 to 60 वाले विस्तारा चले जाएंगे क्योंकि उनके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। आज एज अ मोनोपोली आप डिस्क्रिमिनेट सिर्फ तब कर सकते हैं। ज्ञानेश एकदम नहीं ध्यान दे रहा, आज कॉन्स्टेंटली आप लोग दोनों बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा लोग की तरह अलग अलग बैठाना पड़ेगा। टुडे दे कैन ओनली डिस्क्रिमिनेट बिकॉज दे आर अलोन। सोचिए ना रिया, ट्रू फॉल्स, देयर आर a lot of teachers available for tuitions. If I start discriminating against you, what will be your first reaction? You won't study from me. So बहुत सारी policies, बहुत सारा features firms के elasticity पे dependent है. So that is what we will be discussing in the upcoming classes. आज आप एक छोटी सी चीज़ लिखेंगे आप सबसे पहले magnitudes of price elasticity of demand. मैग्नीट्यूड्स, ये कुछ मत लिखिए अभी, अगला क्लास में इस पर डिटेल बात करेंगे। वट एवर इज योर डे 2, राइट नाउ प्लीज राइट डाउन मैग्नीट्यूड्स या डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी सबसे पहले लिखेंगे आप परफेक्टली इनइलास्टिक। इसको हम लोग रेफर करते हैं एज ED/EP इक्वल टू 0। ED स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या EP स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉनोटेशन इज 0, मतलब इसमें कोई इलास्टिसिटी ही नहीं है, इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। लिखिए इसके अंडर there is absolutely no change. There is absolutely no change in quantity demanded due to any change in price. हिमांशी, आई थिंक ये आपने 9-10 में शायद पढ़ा था, चेंज इन प्राइस, कोई भी दाम पे चेंज हो जाए प्राइस, क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। What kind of a diagram that you think should we make where quantity is 10 है मैम, 0 पे भी 10, 5 पे भी 10, 100 पे भी 10, 1 करोड़ का हो तो भी 10। It should be parallel to the y axis। देखिए अब समझिएगा श्रेष्ठा डायग्राम को, लर्न मत करिएगा। 1 करोड़ पे भी 10 लेंगे, 100 रुपये भी 10 लेंगे, 5 रुपये पे गिर गया तो भी 10 लेंगे, फ्री में बिकेगा ना तो भी 10 ही लेंगे, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। परफेक्टली इनइलास्टिक एक सोच है, कोइंसिडेंटली कहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर इन रियलिटी इट्स अ हाइपोथेसिस, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज द वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ED इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। चलेगा, नेक्स्ट लिखिएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। रिया, इसका कॉनोटेशन क्या होना चाहिए? ED या EP इक्वल टू इन्फिनिटी। नहीं सर, अच्छा सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और ED इक्वल टू इन्फिनिटी, अनगिनत। लिखिए इसके अंदर पहले, और अगर डिसएग्री करें तो सॉरी, बस लास्ट खत्म होने वाला, 5-10 मिनट में हो जाएगा। 5 तो है रे, 2 तो खत्म हो गया। अ स्लाइट चेंज इन प्राइस will lead to either infinity or 0। दर्श, कब इन्फिनिटी कब 0? जब दाम गिरेगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा, हल्का सा दाम बढ़ेगा 0 पे चला जाएगा। आप लोग नहीं देखे होंगे, इट्स अ जेनरेशनल इशू। एक ना टीवी शो होता था हमारे टाइम का, आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, विक्रम बेताल करके, ठीक है।
देखें तो विक्रम बेताल में एक तो क्या होता था, एक तो भूत होता था बेताल बोल के, और विक्रम यूज्ड टू बी अ किंग। वो बहुत अमेजिंग स्टोरीज बताता था, बहुत सॉलिड स्टोरीज होता था, और एंड में विक्रम बोलता था कि बेताल स्टोरी सुनाता था एक ही कंडीशन पे कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, पूरा स्टोरी सुनना है, एक भी शब्द अगर आप बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। हर शो के एंड में बेताल जो भूत था वो एक क्वेश्चन पूछता है, और बेवकूफ विक्रम हर शो के एंड में उसका आंसर दे देता है, और वो हर स्टोरी में भाग जाता है। भैया पॉइंट क्या है यहाँ पे, हाउ इज इट रेलेवेंट? सी ये ना बेताल है, हल्का सा हाथ लगाया उड़ गया, मेजरेबल ही नहीं है, हल्का सा दाम गिरा, द प्राइस वेंट बाय 0.00001, you either go to infinity or zero. When would the consumer go to infinity? When the prices would decrease. And when would it go to zero? If the price increased. इसका diagram समझना सबसे difficult है. A lot of you will have a lot of problems when I'm going to explain the justification of it. ये price है, ये quantity है, देखिएगा श्रेष्ठा, at 100 rupees you buy different price quantities. You buy 5, Tanishq buys 500, somebody buy 50. At 99 there is no demand curve. जीरो नहीं हुआ सर, इन्फिनिटी हो गया। अब आप बोलेंगे इन्फिनिटी प्लॉट कैसे करें? नहीं कर सकते। 101 हो गया, देयर इज नो डिमांड कर्व, कुछ प्लॉट नहीं कर सकते, जीरो हो गया। 90% of the students don't show this. They show this and their marks are deducted. How are you proving elasticity if you don't show the change in price? Elasticity के लिए समझाने के लिए चिराग, मेरा मारना थप्पड़ जरूरी है। रिएक्शन कब आया था? जब मैंने मारा था। जब तक आप प्राइस का फॉल या राइज नहीं दिखाओगे, जब तक एक एरो डाउनवर्ड या अपवर्ड नहीं दिखाओगे, तब ये डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? दाम गिरने पे इंफिनिटी को प्लॉट नहीं किया जा सकता, दाम बढ़ने पे जीरो को क्या प्लॉट करें? ये डायग्राम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। कोई आप 5 दिखा दीजिए, 100 दिखा दीजिए, 1 दिखा दीजिए, 2 दिखा दीजिए। बोल रहा है डिफरेंट क्वांटिटीज आर बीइंग बॉट एट वन प्राइस, द मोमेंट प्राइस चेंज क्वांटिटीज आर नॉट मेजरेबल, अनगिनत हो जाता है। चलेगा? Now, before we continue, Anvi, how good are you in math? ओकेश 7-8 वाला मैथ ठीक ठाक है ना? 11-12 में मैथ तो लिए ना आप? हाँ मैम, मैथ में आप पढ़ेंगे अभी हाइपरबोला और ये सब आएगा आपका। एक ना बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है इकोनॉमिक्स में, एंड इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन द फ्यूचर नाउ। अभी फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, फिर कॉस्ट में, फिर रेवेन्यू में भी लगेगा, बहुत बार लगेगा। अभी क्यों लगेगा? देयर इज अ कर्व विच इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। इट्स अ वेरी स्पेशल कर्व इन इकोनॉमिक्स। ऐसी कोई ऐरा गैरा कर्व नहीं है। अगर हम लोग, रुकिए तो, एक प्रोट्रैक्टर ले और इस प्रोट्रैक्टर के साइड्स को फॉलो करें और उसको एक एक्सिस में प्लॉट करें। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ना, इस कर्व का बहुत स्पेशल नाम है, ये है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। भैया ऐसा क्या खास बात है इसमें? बोल रहा है अगर आप इस कर्व में से कोई भी पॉइंट उठाते हैं, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, जो एरिया आएगा ना, हर पॉइंट में एरिया सेम होगा। ऑल पॉइंट्स ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली गिव यू द सेम एरिया। मतलब समझने की कोशिश करिए। यस सर, ये एरिया इक्वल टू ये एरिया, इक्वल टू ये एरिया। भैया व्हाट आर यू गोइंग? आई थिंक आर्यन हैज अंडरस्टूड दैट ऑल पॉइंट्स का जो डिफरेंस है P1 एंड Q1 सेम आने वाला है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑन द y एक्सिस and percentage change on quantity on the x axis, P1 and Q1 are going to be the same. The response and the reason are reacting in the same proportion. मैंने 60 किलोमीटर आर की स्पीड में थप्पड़ मारा, आपका रिस्पॉन्स भी 60 में आया।
दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। पहले लिखिए फिर डायग्राम बनाते हैं। लिखिए यूनिटरी इलास्टिक ED इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक ED इक्वल टू 1। नाउ मेक, अच्छा भैया डू वी नीड टू टेक द प्रोट्रैक्टर? नो, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल इनफ टू नॉट मेक अ कर्व लाइक दिस, जो देख के समझ में आए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोली नहीं है। यू जस्ट नीड अ लगभग रेक्टेंगुलर हाइपरबोली, बिकॉज आप फ्री हैंड बनाएंगे। यू जस्ट नीड टू मेक अ कर्व जहां P1 जस्टिफाइबली इक्वल लगे, हो भी नहीं चलेगा, कोई रूलर लेके मापेगा नहीं कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख के समझ में आना चाहिए कि P1 और Q1 लगभग सेम है। इट वर्क्स फॉर अस। लिखिए where the percentage change in quantity demanded, where the percentage change in quantity demanded is equal to the percentage change in price. Percentage change in price. गजब का होली खेले आप तो। कहाँ पे कॉम्प्लेक्स? कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका? ओ ये अपना पाड़ा में, ये तो पाड़ा है अपना। साउथ सिटी गार्डन तो इज आवर एरिया। बहुत बच्चा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम साउथ सिटी गार्डन से 100 स्टूडेंट्स पढ़ा चुके होंगे आप। फ्रॉम केतन टू पूर्ति। केतन पे आप उधर क्यों देखें? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, जानते हैं आप क्या स्टोरी है? हाँ, जानते हैं आप? कैसे जानते हैं? ओ आप भी साउथ सिटी में थे? छोड़ क्यों दिए? ओ, तो थोड़ा बात करना होगा क्लास के बाद। हाँ, काफ़ी गॉसिप मिल रहा है हमको थोड़ा बहुत। वी विल नीड टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स अ लिटिल लेटर। चलिए, तो वे क्या लिखे हम? सॉरी, where the percentage change in quantity demand is equal to the percentage change in price. And now you make the diagram. How will you make the diagram? See, यहाँ price, यहाँ quantity. Make a curve which is convex to the origin, bending inward, but make sure that your P1 are almost equal to Q1. मतलब देख के कोई बता दे कि इक्वल है। चलेगा? अगर आपसे ये नहीं बन रहा है, हमारे स्कूल्स में अलाउ किया है लीनियर डिमांड कर्व बनाने के लिए भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, पर वही कॉन्सेप्ट है P1 और Q1 सेम आना चाहिए। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है, जिसको कॉल्ड नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, और लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक्सेप्टेबल है। ये बनाने का मतलब है दिस इज द सिंबल। अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का सिंबल इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। अब कोई हाइपरबोला बोलता है, हमको शायद पता है हाइपरबोली ही होता है। क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है? हाइपरबोली ही बोलते हैं ना? किसी को पता है? हाइपरबोली ही होता है ना? तो बढ़िया ही बोल रहे हैं हम। नहीं, करेक्ट कर लेना चाहिए अपने आप को। तो पहला क्या था? परफेक्टली नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी प्राइस। दूसरा क्या था? स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस विल लीड टू आइदर इन्फिनिटी और जीरो। तीसरा क्या था? ड्रॉ। मतलब किस किस का बात हो गया? पुष्पनील का बात हो गया। भैया आप मार दिए, कूट दिए उसको, उफ तक नहीं बोला। भैया देवांश को बस टच किए थे, आपके मुंह पे एसिड फेंक दिया, वो भी हो गया। खुशबू को 60 की स्पीड में मारे, 60 से रिस्पॉन्स आया, वो भी हो गया। अब कौन बचा? वंश और चिराग। बिफोर आई ड्रॉ द डायग्राम, इलास्टिक बताना है तनिष्का। जिताना किसको है? इलास्टिक है। प्राइस को जिताना है कि क्वांटिटी को? है ना, क्योंकि इलास्टिक है तो रिएक्शन ज्यादा आना होगा, और रिएक्शन कौन है? प्राइस की क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को जिताने के लिए श्रेष्ठता ज्यादा कवरेज किसको दे? प्राइस को कि क्वांटिटी को? तो फ्लैट कर्व बनाना थोड़ा। सुनो, अभी मत बनाओ। और अगर हम तुमको बोले इलास्टिक बताना है, इलास्टिक, तो किसको जिताना है? वाई एक्सिस को कि एक्स एक्सिस को?
तो स्टीप कर्व बनाना, थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि नहीं तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। इसको भी आप पूरा स्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। स्टीपिश या फ्लैटिश। अब नोटिस करिए मैं ऐसा क्यों किया गिरिक, इस प्राइस पर इतना क्वांटिटी था, हल्का सा प्राइस गिरा और क्वांटिटी देखिए P1 और Q1 में डिस्टेंस किसका ज्यादा है? क्वांटिटी का रिएक्शन प्राइस के रिएक्शन से, रीजन से ज्यादा है। Whenever we are asked to make an elastic curve, we always look for flat curves. Whenever we are asked to make an inelastic curve, we look for steep curves. अगर नोटिस करें, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, P1 में और Q1 में आ रही है, ज्यादा चेंज किसका है? So this is inelastic because price is winning. This is elastic because quantity is winning. मतलब सिंगल हैंडेडली प्राइस इज विनिंग, मतलब बेइज्जत करके हरा रहा है क्वांटिटी को कि हिलने तक नहीं दिया। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वांटिटी बोल रहा है हाथ तो लगा के देख, या तो जीरो या तो इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक। बीच में आता है ड्रॉ, इक्वल, और एक में क्वांटिटी जीत रहा है और एक में प्राइस जीत रहा है। क्वांटिटी जीते तो रिलेटिवली इलास्टिक है, प्राइस जीते तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। हाँ बना सकते हैं, पर स्ट्रेट बनाएंगे तो आप ही के लिए ईजियर होगा दिखाना, नहीं तो नॉन लीनियर में आपको पकड़ में नहीं आएगा कि कहाँ से घुमाना था। बोलिए। पर ऐसा दिखता है, मतलब ऐसा करना कि ये दोनों इक्वल लगे। अब यही कर्व को अगर हम ये नहीं बनाते और थोड़ा सा फ्लैटर कर देते तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। देखना सेम ही लग रहा है नहीं, पर देख के समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं है। तो आइडिया है कि ये दोनों को आपको या तो इक्वल दिखाना है, एक में क्वांटिटी को जिताना है, एक में प्राइस को जिताना है। स्टीपिश, दोनों डाउनवर्ड है। हाँ, वो थोड़ा सा स्टीप कर्व बनता है, और जितना इलास्टिक कर्व बनेगा वो फ्लैटिश बनेगा। पूरा फ्लैट हो जाए तो परफेक्टली इलास्टिक, पूरा स्टीप हो जाए तो परफेक्टली इनइलास्टिक। हम लोग कहाँ तक लिखे हैं? रिलेटिवली इलास्टिक ना। इसका आंसर लिखिए नंबर 4 का। वेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा ED इज ग्रेटर देन 1, कौन सा लिख रहे हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ED इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। लिखिए वेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलेगा? डायग्राम कैसा होगा दर्श? फ्लैटिश। तो यहां पर सर P पे इतना Q है और प्राइस गिरा और क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं। इफ यू वांट मी आई कैन मेजर इट। दिस इज अबाउट 0.4 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 2.3 सेंटीमीटर्स या 2.4 सेंटीमीटर्स। देख के ही समझ में आ जाएगा that this here quantity is winning, price is losing, so the reaction is more than the reason, है ना? आपके घर में भी लोग होंगे ऐसे, पता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, भग में आग लग गया घर में, हमारे घर में थे, मतलब नाम नहीं ले सकते हैं, आग लग गया है, ठीक है यार, आता ही होगा फायर इंजन वाला लोग। कोई लोग अगर हल्का सा आग में नहीं लगा, या ऑफिस टीवी शो देखते हैं आप, वो खाली धुआं निकलने पे ही बौखला जाता है माइकल स्कॉट। अगर आप ऑफिस शो देखे हैं तो आप समझेंगे मैं किस एपिसोड की बात कर रहा हूँ। कोई ना रिस्पॉन्स प्रपोर्शनेट देता है, आग लगाए 911 या इंडिया में फायर एक्सटिंग्विशर वाले लोग को फ़ोन करो, उस हिसाब से काम करो। कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर जाता है, कोई ज़्यादा ही ढीला रह जाता है। सो रिएक्शन अगर ज़्यादा आए तो इलास्टिक है, रिएक्शन कम आए तो इनइलास्टिक है, इक्वल आए तो यूनिटरी है, नहीं आए तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, इमेजरेबल रिएक्शन आए तो परफेक्टली इलास्टिक है।
लास्ट वाला बचता है गेस, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिए आई थिंक. रिलेटिवली इनइलास्टिक, नहीं गुड है, दैट्स अ गुड थिंग. ऑलवेज रिमेंबर ना, मैं इस दिस इज माई द रीजन दैट आई एम इनटू टीचिंग इज बिकॉज ऑफ दिस कोट. अ टीचर इज समवन हु इज प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी. धीरे धीरे यू शुड नॉट नीड मी. If you always need me, spoon feeding, every answer needs to be given to you, I am not doing my job correctly. धीरे धीरे it should be, this text should come. Thank you for the classes, भैया. I don't think I need you anymore. That is my proudest moment. जब जिस दिन you don't need me, that means I have done my work perfectly well. एक पौधा को कभी आप अगर नोटिस करें, if you give extra water, आप जानते हैं उसका रूट्स कभी नीचे तक जाएगा ही नहीं, बिकॉज वो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा. और अगर आप कभी पानी नहीं देंगे, वी नो व्हाट विल हैपन टू द रूट्स. सो ओवर फीडिंग द किड्स इज ऑल्सो अ बैड थिंग, एंड नॉट गिविंग प्रॉपर गाइडेंस इज ऑब्वियसली अ बैड थिंग. सो स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए, बट धीरे धीरे ट्राई टू नॉट नीड मी, है ना. एट द एंड ऑफ द डे दिस शुड बी योर बिहेवियर कि now I understand what the next item is, I'm going to write it on my own. That means we are on the right track. तब ठीक पढ़ाई हो रहा है ना. चलिए, सॉरी, relatively inelastic. ED क्या लिखे हैं दर्श? Less than 1. Very good. लिखिए बस 2 मिनट और. Where the percentage change in price is greater than the percentage change in quantity demanded, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि percentage change is lesser than percentage change in price, चलेगा, मतलब quantity जीतेगा. Where the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price, it is relatively inelastic. डायग्राम कैसा होगा पुष्पनील? स्टीपिश. सर बना भी दीजिए यहाँ पे PP1 QQ1. देख के कोई भी अंधा आदमी भी बोल दे कि इतना प्राइस है और क्वांटिटी बस इतना सा है. सो ये आपका फर्स्ट क्लास हुआ इलास्टिसिटी का, जहाँ पर आप 5 मैग्नीट्यूड सीखे. अगला क्लास पे आप इसको मेजर करना सीखेंगे, जहाँ पर परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है. 3 मेथड से आप इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे. फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच वी डिस्कस टुडे फ्रॉम द बुक. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू एंड मेक नोट्स ऑन दैट. देन वी हैव income elasticity, the degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in income. And then we have cross price elasticity, and that is where we end. मतलब 3 more classes, and then first 2 chapters will be done, I think by 15th. उससे पहले इसके बाद once we finish elasticity, we start with consumer equilibrium.